Presentation that I have prepared for all of you guys. So as you can see that the presentation says that the test taking techniques. All right. So that is what we'll be covering today. All the techniques that you can actually work upon. All right. So guys, this will be our montage that will be all these are the topics that we'll be covering. This will be all the topics that we'll be talking about, like what is the schedule of your exam, and the paper pattern that this time they have changed. What will be the advantages of that? How you can utilize that change of the paper pattern? Different weightage, different syllabus and the weightage. Especially, we'll be talking about mathematics. There will be some general tips that I will be sharing, but more will be focusing on maths as well. Okay. In the later part of the seminar, we'll talk about mathematics in much detail, and the advantages of short notes, how you can utilize the short notes. What is the strategy to attempt the paper? That will be the main agenda. And what are the must do concepts, considering all the recent year examinations? What are the concepts that are which are coming frequently, or maybe these are the concepts that you should never miss. Okay, so those are the things that I have I've gathered all together, all these things, and some general tips. As I've told you that there will be some general tips as well, what you can do for your March attempt, and then again what should be your plan for the April and the May attempt. So this is the things that we'll be covering today. Let's start to the JEE main schedule. So all of you are very well aware of the schedule that your coming exams. Okay, so first attempt is done. You guys have attempted session 1 and uske score bhi aa chuke hain. Some of you have done very well. Those students who have not scored well, don't get disheartened. There are again 3 sessions left, 3 attempts left. So work upon your mistakes, learn over your mistakes, and I'm definitely sure that you'll guys do much better in the coming attempts. And we'll discuss some tips. You can actually acquire these techniques to help you boost up your score next time. So okay, so 15, 16, 17, 18, and timings are there. First tips and the second tips, so timings are pretty clear to you. Now understanding the paper pattern. So now this time, see what change they have brought is they have given choice. Well, this is the first time that they have given choice. The reason for that is because of syllabus reduction in the various states. So just to manage that balance, just to keep that balance, they have given in the numerical response. In the numerical response type, they have given 10 questions in which you have to attempt 5 questions. Now, guys, I just want to tell you advantages of this paper pattern. First, you just go through the paper pattern that there are 25 questions which you have to attempt. Your maths is 100 marks, physics is 100 marks, chemistry is 100 marks, and total is 300 marks, which you are all aware. The marking scheme is also given that for a correct answer there is a plus 4 marks, for a wrong answer there will be a minus 1 marks. But this is only for the 20 questions. The numerical response will not have any negative marking, so 5 questions will not have any negative marking. Okay, and there are other things also given here, that how the merit NTA score is developed, how the normalization process takes place. So all these things are there, so you need not to worry about that. What you need to understand is that sometimes your score get tied, right? So how they resolve a tie, it is also mentioned here. So they, between the candidates obtaining equal NTA score, so when there is a tie, your maths score is first followed, right? So they check your maths score. A person having a greater maths score will be given a higher rank. Okay, and then suppose maths score is also same, so then they jump to the physics score. If that is also the same, there is a tie in that, so they then again consider the chemistry score. And if that is again a tie, then they compare a ratio
of negative to positive response. Okay, तो जिसका ये रेशियो है ना नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिसका रेशियो कम होता है उसको हायर रैंक मिलती है, कि नेगेटिव responses कम, positive responses ज़्यादा, तो ratio will be lesser, so that person will be given a higher rank. Okay, so higher NTA score. So this is how the ties is resolved. And now about the 10 questions which are given in the numerical response, you have to attempt only 5. Now, just one particular thing that I want to tell here, guys. See, always remember this thing. The numerical response questions might appear tough to some of you. Believe me, from the 20 MCQs, the numerical response questions are comparatively easy. Yes, it is true, guys. आपको ऐसा लग रहा होगा कि sir, there are no options. There can be n possibilities of the answers, but to balance that thing, the level of the question is comparatively easy. Okay, so you just either they will be formula based, or they will be, you know, they will appear little tough to you, but there will be only small calculation technique which will be which was utilizing there. So you should understand, remember this thing, that they will always make the difficulty level of numerical response easier than the 20 MCQs. It's a fact, because they have to balance that because there are no options, right? So there are n possibilities, infinite possibilities. So they have to keep that balance to you know, maintain the difficulty level. So they will always give an easier question in that. Okay, so this is about the paper pattern, and guys, try to understand that what is the syllabus in your mathematics. Mathematics में हमारा क्या syllabus है? What is the syllabus in the mathematics? So there are 5 overall units: algebra, trigo, calculus, coordinate, and then there are some miscellaneous topics. Okay, so as you are well aware of all the topics, see algebra, we have quadratic, complex, binomial, matrices, determinants. Trigonometry branch में भी 5 topics हैं. Calculus, it's an important branch, इसका weightage भी अच्छा होता है. Coordinate geometry, again it has a good weightage. And then there are certain miscellaneous topics listed over here: vectors, mathematical reasoning, statistics. See guys, try to understand this thing, that the miscellaneous topics are of equal importance as of the other topics, right? In fact, miscellaneous topics में से stats में से एक क्वेश्चन आता ही है, मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आएगा ही, तो इनका तो फिक्स होता है बेटा कि क्वेश्चन आना ही है, right? And I have also covered that, you know, what are the topics that you can attempt, what are the topics that you can you know, that can be very much scoring to you. So that will be in the next slides. So this is overall the syllabus, and we just need to, you know, analyze, or we need to understand how we can utilize the most of the syllabus. Okay, so going to the next slide is the syllabus, weightage, and the coverage. Okay, so if you will see here, almost there are, you know, 30 topics, and in your mathematics JEE paper there are also 30 questions given with options. I mean, you'll have to attempt 25, but the 30 questions are given, right? So the weightage is almost equal. मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना है कि कोई एक चैप्टर ऐसा है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें से सवाल नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता बच्चों. जेईई मेंस में इक्वल वेटेज है हर चैप्टर का. So the balance is almost 30 questions and 30 chapters, so the weightage is equal. मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन आएगा तो इंटीग्रेशन का भी एक क्वेश्चन आएगा, so the equal weightage is there, almost equal weightage, है ना? Okay, so this is one thing that you need to understand, that you will not skip any, you know, chapter की ये chapter तो छोटा सा chapter है, इसका तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ऐसा नहीं है. Okay, या ये chapter बड़ा है तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा भी नहीं होता. ठीक है, इक्वल वेटेज होता है. एंड okay, so now there is this thing which we call as a short notes and handbooks in the formula booklet. I have given like how short notes here, very much hoping that, you know, throughout this your preparation you guys have maintained your short notes copy, note copy, and अगर आपने नहीं भी किया है तो
आप कहीं से you can always search on Google, you can find different short notes available. Even हमारा जो अरिहंत मॉड्यूल है उसके एंड सिनॉप्सिस दे रखा है, तो आप वहां से वो शॉर्ट नोट्स को देख सकते हो. वी हैव प्रोवाइडेड यू विद दैट. तो शॉर्ट नोट्स इस टाइम पे बेटा, एग्जाम के टाइम पे, लास्ट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इनफैक्ट शॉर्ट नोट्स इज अ वेरी पावरफुल टूल टू रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स. ठीक है, एंड टाइम पे आप पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, राइट? आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं अपने सेल्फ लैंग्वेज में जो आपने लिख रखा है, उसको आप एज अ की इंस्ट्रूमेंट समझिए आपके रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए. तो जितने भी फॉर्मूलेज हैं या कोई कंसेप्ट्स हैं, आपको जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीचिंग टीचर ने कभी कुछ फ्रेजेस बोले होते हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं वो आपने लिखे होंगे, तो वो सब चीजें जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका आपको करना है. अगर आपने नहीं है तो आप अपने अरिहंत के मॉड्यूल में जा सकते हैं, वहां पे सिनॉप्सिस दे रखा है एंड में, आप उसको रेफर कीजिए, राइट? बट बिलीव मी, शॉर्ट नोट्स आपको जरूर से जरूर हर चैप्टर के आपके बने हुए होने चाहिए, उसको ही आपको रिवाइज करना है एंड टाइम पे. ठीक है, और कम से कम 2 बार या 3 बार आपको रिवाइज करना है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट नोट्स, जिसमें ऐसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, छोटे छोटे फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन 3D लाइन एंड प्लेन के बारे में यहाँ पे दे रखा है. तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालना है, या पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग अ लाइन, या जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना? और कोप्लिनरिटी की कंडीशंस के यहाँ पे केसेस दे रखे हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म दे रखा है. तो ऐसे छोटे छोटे जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के बारे में यहाँ पे बात करिए, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस पे अपन ने क्वेश्चन भी किया था एक बार. सो these are all the way, this is how you have to maintain the short notes. तो प्लीज मेंटेन इट. कहीं ना कहीं से या तो आप उसको देखिए, पढ़िए. शॉर्ट नोट्स पे आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करने की स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट होते हैं, राइट? ओके, नाउ विल कम टू द स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द पेपर. जो हमारा मेन एजेंडा रहेगा कि सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, क्या बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है जिससे हम पेपर में हमारा जो टेम्परामेंट है और जो टेस्ट हम दे रहे हैं, सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी, हाउ विल बी एबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स, एंड क्या बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है टेस्ट देने का. तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पेपर को अटेम्प्ट करने की, वो यहाँ पे बेटा मैंने कवर की है आपके लिए. एज यू कैन सी गाइज दैट देयर आर three particular points on which you'll have to actually work upon. That whenever you are attempting a paper, you'll have to take care of the time management, then what kind of questions to be solved, कैसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं या किस सीक्वेंस में सॉल्व करने हैं, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. और देन एक और पॉइंट है जिसका आपको टेक केयर करना है, वो है एक्यूरेसी और स्पीड को कैसे मेंटेन करना है. देखिए ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, इनमें इंटरसेक्शन है, ये इंटरलिंक्ड है. एज यू कैन सी द टाइम मैनेजमेंट, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, एक्यूरेसी, स्पीड, दे विल ऑल गो टुगेदरली आपको इनको समझना पड़ेगा और इन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. देखिए एक चीज मैं और कहूंगा बच्चों आपको कि ऐसा नहीं है कि आज मैं आपसे ये सेशन ले रहा हूं तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे यू विल बी एबल टू मैनेज दिस स्ट्रेटेजी. इट विल टेक टाइम. ठीक है, तो वो भी हमने इस एंड में आपको मैं वो भी बताऊंगा कि आपको कैसे इस पे ये प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको टेस्ट आपको देने पड़ेंगे. फिर ये स्ट्रेटेजी आपकी जो आई होप दैट टिल नाउ यू गाइज हैव डेवलप्ड सम ऑफ यू हैव डेवलप्ड योर ओन स्ट्रेटेजी, तो वो बहुत अच्छी बात है और आपको उस स्ट्रेटेजी पे ही स्टिक करना है. ऐसा नहीं है कि आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको वो ही फॉलो करना है, ये एक जेनेरिक स्ट्रेटेजी है. इसमें से आप कुछ जिसने अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी है, दे कैन एक्वायर सम पॉइंट्स एंड दे कैन put an add-on kind of to your own strategy and you can work in that manner. So in all, a generic point of view से time management, selection of questions, accuracy and speed, ये तीन चीजों पे आपको कैसे कमांड करनी होती है जिससे आपका अटेम्प्ट जो हो पेपर का वो बेस्ट हो पाए. So let us try to understand, let us try to
अंडरस्टैंड ईच टॉपिक, है ना, लाइक हाउ यू शुड मैनेज, मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, सम यू नो some during my whenever I was when I was teaching, or whenever I teach, so some of you students comes to me and ask कि sir 3 घंटे में हम लोग नहीं कर पाते हैं सारे क्वेश्चंस, या है ना, कुछ बच्चे ऐसा भी मैं पूछता हूँ कि पेपर कैसा हुआ, तो देश से कि सर मैथ्स के लिए तो मुझे आधा घंटा ही बचा, मैं कर ही नहीं पाया आगे, है ना। कुछ लोग को फिजिक्स में ऐसा होता है, कुछ लोग केमिस्ट्री में ऐसा बोलते हैं कि सर मैं तो फिजिक्स चालू किया और 2 घंटे तक फिजिक्स ही करता रहा। तो ये जो चीजें है ना बेटा, ये हमें नहीं करनी है, इसे अवॉइड करना है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही सब्जेक्ट को पूरे टाइम उसी सब्जेक्ट को करते जा रहे हो और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको टाइम नहीं मिला। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। क्या बेस्ट पॉसिबल वे है कि आपका टाइम मैनेज हो? तो ये एक जेनेरिक चीजें मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, जनरल चीजें। किस चीज पे आपको ध्यान रखना होता है, आपको किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट पिक करना है, कि आप पहले केमिस्ट्री से सॉल्व करोगे, कि मैथ से सॉल्व करोगे, कि फिजिक्स से करोगे। एक सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपका होना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अभी तक आप लोगों को बेटा सेट कर लेना होता है। आई नो कि काफी बच्चों ने सेट कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो इस चीज को स्टार्ट करो इम्प्लीमेंट करना। और यहाँ पे एक मैंने जेनेरिक तरीका बता रखा है कि यूजुअली ऐसा माना जाता है, ये एक बेस्ट, मतलब यूजुअली इट इज सेड कि जो आपका सीक्वेंस होना चाहिए सब्जेक्ट्स को अटेंड करने का जेई के अंदर, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द केमिस्ट्री, है ना। तो केमिस्ट्री से आप स्टार्ट कीजिए और फिर फिजिक्स और मैथ्स, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगता है, इधर यू डू फिजिक्स और यू कैन गो मैथ्स, वो कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए, अगर आप स्लाइड को ऑब्जर्व करोगे तो स्लाइड में ऐसा भी लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री है, उसके बाद फिजिक्स मैथ्स, तो हर बार केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। अच्छा, अगर आप स्लाइड को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो इस स्लाइड में ऐसा भी लिखा हुआ है कि यू नो easy and all right, so now what is the sequence that you need to follow is that you start with the chemistry, then you can jump to physics or maths. अच्छा बच्चों, उसमें भी whenever you start with the chemistry, तो it does not mean कि आपको केमिस्ट्री के पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है कि अगर क्वेश्चन में सिक्वेंसिंग 1 2 3 4 ऐसे दे रखी तो आप सिक्वेंशियली अटेम्प्ट करें, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि हो सकता है जो पहला क्वेश्चन प्लेस्ड हो वो बहुत डिफिकल्ट हो, और अगर आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो हो सकता है वो आपसे ना हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ही डाउन हो जाए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अगर मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले एक बार आई विल गो थ्रू द पेपर ऑफ द केमिस्ट्री, आई विल गो थ्रू द केमिस्ट्री पेपर एंड आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर द इजी क्वेश्चंस, कि इजी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। नाउ देयर कैन बी वन डाउट ऑफ सम स्टूडेंट्स कि सर in the NTA test paper, one questions pop up at a time. So it is not like that, guys. Remember, as you can see that the panel, the question palette which you have, on in your online test paper, the question palette which you have now, there is a icon of question paper download, yeah, question paper view. That icon will actually give you the whole PDF in which you can have a look of all the questions. So आप उस पर्टिकुलर आइकन का यूटिलाइजेशन जरूर कीजिए, वो जरूरी है। आप ऐसा मत सोचिए कि ओनली वन क्वेश्चन एट अ टाइम यू कैन सी। देयर इज अ बटन at the, I think in the top right corner it is mentioned, in the top right corner there is a button of question paper. You can click on that and you can view the whole question paper. So you have to take advantage of that particular icon. Okay, इस फीचर का आपको बेटा यूज करना है। तो क्या कीजिएगा, whenever you have to start, आप जैसे केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं सपोज, है ना, तो go through the paper and I'm almost, I mean this is for sure that when you will go through the paper in chemistry, you will find at least 8 to 10 questions which are directly answerable. I think organic inorganic के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग जब एक बार when you will have a look, you will identify that okay, this is direct question, this is theory based questions.
तो एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो आपको पहले वो 10 to 12 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। केमिस्ट्री में एज यू कैन सी आई हैव मेंशन्ड हियर आल्सो कि इजी वाले क्वेश्चंस 10 से 12 पहले केमिस्ट्री में यू विल हैव टू डू, देन यू गो टू फिजिक्स एंड मैथ्स। या फिजिक्स में हम जा रहे हैं तो सेम अप्रोच, फिजिक्स का पेपर एक बार देखा, देखते से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ ये क्वेश्चंस इजी है। देखिए इजी की डेफिनेशन सबके लिए अलग हो सकती है। जिस आप लोग सी इफ इजी क्या हो सकता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या कोई ग्राफ का क्वेश्चन है, जैसे फिजिक्स में आपको लग रहा है कि कोई ग्राफ का क्वेश्चन है या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फिजिक्स में कि क्या इजी क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैथ्स में क्या इजी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, दैट वी विल टॉक इन डिटेल। एंड फिजिक्स के लिए आप अपने फिजिक्स की जो फैकल्टी है उनसे भी गाइडलाइन ले सकते हैं कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई द इजी क्वेश्चंस या व्हाट कैन बी द इजी क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में यू कैन टेक हेल्प ऑफ अवर केमिस्ट्री एक्सपर्ट, है ना, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। मैथ्स में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इजी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये हम बात करेंगे। बट आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए, लाइक व्हाट कुड बी द सीक्वेंस शुड बी attempt the easy questions of all the three subjects, है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। केमिस्ट्री में you will find 10 to 12 questions, फिजिक्स में आपको 5 से 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे बच्चों, मैथ्स में भी 5 से 6 क्वेश्चंस you will find। तो इन टोटल अगर आप देखोगे तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस, 20 to 25 क्वेश्चंस you can actually attempt अंडर 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर में आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि इजी क्वेश्चंस है। नाउ बिलीव मी, अगर आप 20 to 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके 25, सपोज इफ यू आर अटेम्प्टिंग, तो 20 करेक्ट तो होंगे, इतना तो चांस, क्योंकि इजी क्वेश्चंस है। अगर आपके 20 भी करेक्ट है तो आपने कितना स्कोर कर लिया, 80 स्कोर कर लिया। कट ऑफ लगभग जो जाता है वो अराउंड 100 तक जाता है। मतलब आप 1 आवर से 1 आवर 15 मिनट्स में आपका कट ऑफ तो क्लियर कर ही सकते हो, है ना। तो ये थोड़ा सा चीजें आपको समझनी चाहिए, है ना, कि दिस इज हाउ आई विल वर्क। सो इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, पहले इजी करना है केमिस्ट्री के, फिर फिजिक्स के, फिर मैथ्स के, या जो भी सीक्वेंस है। केमिस्ट्री पहले स्टार्ट करें, फिर आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी है विद द मॉडरेट क्वेश्चंस। कि केमिस्ट्री के मॉडरेट क्वेश्चंस, कई बार ऐसा होगा जब आप क्वेश्चंस पेपर देखोगे तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यार नहीं, ये क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन लगेगा, या फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, या मैथ्स के अगर हम बात करें कि यू नो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो सारी प्रोबेबिलिटीज लिखनी पड़ेंगी, फिर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, या डिटर्मिनेंट का कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने पड़ेंगे, तो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ अ टाइम। तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो मॉडरेट क्वेश्चंस आपने आइडेंटिफाई करे वो आपको करने हैं नेक्स्ट 60 to 80 मिनट्स में, है ना। तो मॉडरेट क्वेश्चंस यू विल सॉल्व, और फिर इसको मिला के लगभग आपके 2 से 2.5 घंटे, 2 घंटे, यू नो इट विल 2 आवर्स विल बी लैप्स्ड अराउंड दैट। और आप कितने क्वेश्चंस कर चुके होंगे दैट यू कैन काउंट ऑन द स्क्रीन, इट इज मेंशन्ड हियर गाइस, दैट यू नो केमिस्ट्री में मैंने लिखा है जैसे 7 to 8 क्वेश्चंस मॉडरेट, फिजिक्स में और मैथ्स में मॉडरेट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, मैथ्स में लगभग 10 क्वेश्चंस, फिजिक्स में भी आप 10 मानिए तो 20 एक क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं। मॉडरेट टॉपिक्स का ज्यादा मतलब काउंट है, तो आपको क्वेश्चंस का काउंट भी वहां से ज्यादा मिलता है। तो लगभग अगर हम देखें तो इजी एंड मॉडरेट ये क्वेश्चंस आपको 2 to 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर लेना है। 2 से 2.5 घंटे में आपके इतने सवाल हो जाने चाहिए, और सिर्फ यू आर लेफ्ट विद व्हाट नाउ, द डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ आप बचते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस कम होते हैं, फिजिक्स में देखेंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन, मैथ्स में भी आप देखेंगे तो 3-4 क्वेश्चंस, मतलब 4-4 क्वेश्चंस, लगभग 8 क्वेश्चंस मान लीजिए इसमें, और केमिस्ट्री में आप 4-5 क्वेश्चंस मान लीजिए, तो 12-15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। मतलब अगर 175 क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं 25 तो कम से कम मतलब आप देखिए 75 में से 15 क्वेश्चंस आप मान लीजिए, 15-20 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस 2 से 2.5 घंटे में बच्चों आपको इतने सवाल कर लेने हैं। और फिर जो डिफिकल्ट वाले सवाल होते हैं, ये जो सवाल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास आखिरी के 30 to 40 मिनट्स हैं, अगर आप 15 में से सपोज आधे भी कर लेते हैं, then also it will make I mean that will be a much मतलब आपका स्कोर काफी बढ़ जाएगा उससे, है ना।
क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन विल एक्चुअली फिल्टर योर रैंक, वो आपकी रैंक फिल्टर करने वाला है ना, क्योंकि इजी तो सभी करेंगे, मॉडरेट भी सम पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल सॉल्व, डिफिकल्ट विल एक्चुअली फिल्टर योर रैंक। तो इस तरह से आप सीक्वेंस थोड़ा सा बनाइए सब्जेक्ट का, टाइम को इस तरह से मैनेज कीजिए ना। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको इस पे करना पड़ेगा कि कैसे इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं, फिर मॉडरेट कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, सबके लिए इजी अलग होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ ये बात, ठीक है। मैं मैथ्स में क्या इजी हो सकता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, दैट वी विल टॉक। आई होप दैट अभी तक आप लोगों ने जितने पेपर्स दिए होंगे उसमें इस टाइप की स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं आपने यूटिलाइज की होगी, अगर नहीं की है तो उसको अमेंड करने की थोड़ी सी कोशिश करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट पार्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। वही जो हमने कहा कि कैसे क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करने हैं। तो मैथ्स के अंदर बेटा इजी टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक व्हाट कैन बी द इजी टॉपिक्स, है ना, क्या टॉपिक्स इजी होंगे मैथ्स में। तो देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है कुछ इजी टॉपिक्स। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत इजी उसका क्वेश्चन आता है, ट्रुथ टेबल का आता है, राइट। या फिर जहां से अगर आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का आ सकता है, इनवर्स का, कन्वर्स का आ सकता है ना। फिर सेट्स एंड रिलेशंस, इसके क्वेश्चंस भी इजी आते हैं। सेट्स का जो क्वेश्चंस आता है कई बार वो नंबर ऑफ सबसेट्स या फिर थोड़ा सा उसमें पीएनसी मर्ज होके आ जाता है, तो इजी क्वेश्चन ही आता है। बट सेट का भी, रिलेशन का भी जो क्वेश्चंस है वो ट्रांजिट टाइप ऑफ रिलेशन को आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस आर इजी फॉर सेट्स एंड रिलेशन। फिर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत इजी आता है बेटा, आपने 10th क्लास में भी you guys have already studied height and distance, तो same level होता है, only the difference is that in 10th class the numerical values were given and in the this thing there are values in the form of variable, मतलब variables के form में ही आपको answers भी options भी दिए होते हैं, तो बस इतना से difference होता है। so height and distance, statistics का बहुत easy question आता है, variance पे usually आता है, standard deviation पे आता है ना। binomial theorem अगर जनरल टर्म आपने पढ़ रखा है तो मोस्टली क्वेश्चन जनरल टर्म के अराउंड ही रिवॉल्व होता है। सीरीज के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं बाइनोमियल में, सो बट हाँ जनरल टर्म के हेल्प से आप काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं। एरिया का क्वेश्चन बहुत इजी आता है क्योंकि फिक्स है, या तो पैराबोला पैराबोला सर्कल पैराबोला इतना ही आता है, या रीजन का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, लाइन एंड पैराबोला, तो इजी टू कैलकुलेट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये थोड़े से क्या होते हैं इजी टॉपिक्स है। तो सपोज आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हो या क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन जो मैथमेटिकल रीजनिंग का दिख रहा है, तो आप पहले उसको बना लो, राइट। देन यू कैन आइडेंटिफाई कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है क्या इन द पेपर, सो यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन सी ओके दिस इज हाइट एंड डिस्टेंस, सो आई विल सॉल्व द हाइट एंड डिस्टेंस। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो कर दिया, एरिया का क्वेश्चन है कर दिया। तो ऐसे आप देखिए जो मैंने इजी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट्स एंड रिलेशंस, ठीक है, height and distance, statistics, and then your binomial theorem, and then area, and then quadratic। तो लगभग 7 टॉपिक्स हैं। इन 7 टॉपिक्स में से आप 6 क्वेश्चंस तो मान के चल सकते हो कि आएंगे, है ना। तो ये जो 6 क्वेश्चंस हैं ये आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ऐसे ही फिजिक्स में भी आपको 5-6 इजी टॉपिक्स मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी मिलेंगे। तो लगभग आप क्या कर सकते हो 18 से 20 क्वेश्चन इन द 40 मिनट्स और 45 मिनट्स ट्राई टू कंप्लीट, है ना। अंडर 60 मिनट्स में आपको 20 से 25 क्वेश्चन कर लें। ये स्ट्रेटेजी आपको थोड़ी सी अप्लाई करनी होती है। फिर मॉडरेट टॉपिक्स भी मेंशन्ड है, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आता है। कई बार इसमें ऐसा होता है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो आप ऐसे टाइम पे क्या कीजिए, वो जो आपके पास मार्क फॉर रिव्यू, ये वाले जो फीचर्स है ना, इनकी यूटिलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन में 2 से 3 मिनट से ज्यादा लगने वाले हैं, या आप अटक गए, आपसे नहीं हो रहा है अब आगे, तो आप ना मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाइए, जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, सो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आता है। ऑलराइट, मैंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को मॉडरेट में इसलिए रखा है कि यूजुअली जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो अगर आप उसको अच्छे से कर लोगे तो थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच से, बिकॉज ग्राफिकल अप्रोच उसमें लग जाती है, तो वो लेवल इजी हो जाता है उनका, अगर आप ग्राफ पे कमांड करके सवाल को
अटेम्प्ट करते हैं, तो इसलिए आई हैव केप्ट दैट इन मॉडरेट। हालांकि इसमें से कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो जैसे रोल्स थ्योरम या लैग्रांज थ्योरम या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो इस पे आते हैं तो थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो बट मैनेजेबल है, राइट। एलिप्स, सर्कल, सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी का क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आएगा बेटा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये फेवरेट टॉपिक होता जा रहा है अभी आजकल जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए। काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बच्चों। ये प्रोबेबिलिटी अगेन द क्वेश्चन विल बी मॉडरेट। नाउ डिफिकल्ट टॉपिक्स यूजुअली क्या होते हैं या क्वेश्चंस जो आता है, जैसे इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन होता है बेटा, जो हमें कई बार क्या होता है कि उसमें क्या फॉर्म्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, कैसा पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन है, तो कई बार वो आइडेंटिफाई अगर आप नहीं कर पाओ या क्लिक ना हो तो वो लेंदी पड़ सकता है क्वेश्चन और उसमें टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए उसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में डाल दिया। हो सकता है क्वेश्चन वैसे आसान हो लेकिन कुछ कैलकुलेशंस ऐसे हो रहे हो कि वो एक सब्स्टिट्यूशन, दो सब्स्टिट्यूशन, तीन सब्स्टिट्यूशन ऐसा हो रहा हो, ऑल्दो इजी सब्स्टिट्यूशंस हो, तो वो चीज के कारण वी हैव केप्ट दैट इनटू द डिफिकल्ट कैटेगरी। ऑलराइट, सो नाउ लिमिट, हाइपरबोला यूजुअली कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं एसिम्पटोट से रिलेटेड की इंटरप्रेट हम नहीं कर पाते या प्रॉपर ग्राफ नहीं बना पाते, तो आप उसको डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर, एओडी, बट अगेन इजी की डेफिनेशन अलग है तो डिफिकल्ट की डेफिनेशन भी अलग है। हो सकता है किसी बच्चों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हो तो उनको वो इजी लगे, देयर कैन बी, आई मीन इट कैन बी पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चंस का जो हम कैटेगरी डिफिकल्टी लेवल वाइज बनाते हैं, तो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। कभी भी आप ऐसा मत करना बच्चों, डू नॉट डू लाइक दिस कि यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन सिक्वेंशियली। नोबडी हैज सेड दैट कि आपको सिक्वेंशियली ही करना है सवाल, ओके। द टेक्निक दैट यू नीड टू अडॉप्ट इज दिस, दैट you should select the questions, easy topic से क्वेश्चन सिलेक्ट करो, पहले वो करो, सबके इजी कर लो, फिर मॉडरेट कर लो, फिर डिफिकल्ट, लाइक दैट, ओके। सो दिस वाज अबाउट all the easy topics, moderate topics, और अब what I have covered in this slide, I think you can see that these are the must do concepts or based on the previous year paper analysis. कुछ ऐसे बेटा टॉपिक्स, आई मीन ऑल द टॉपिक्स आई हैव कवर्ड, जितने भी 30 आपके टॉपिक्स हैं ना, उनमें से क्या क्या कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको मिस नहीं करने। यूजुअली इन्हीं कंसेप्ट्स पे ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये मस्ट डू कंसेप्ट्स हैं, इनको तो मिस करना ही नहीं है। आई हैव कवर्ड फॉर ईच टॉपिक्स, तो लेट अस हैव अ व्यू कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, है ना। टॉपिक वाइज हम मतलब कंसेप्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को मैंने पहले यहाँ पे रखा है बच्चों, सो यू कैन सी कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ओके। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स अभी जो पेपर्स हुए हैं उनमें भी काफी क्वेश्चंस, मतलब आई थिंक हर सेशन में, हर शिफ्ट में एट मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही हैं, 3 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के। कभी डिटरमिनेंट्स का एक, मैट्रिसेस के 2, या कभी मैट्रिसेस का एक, डिटरमिनेंट्स के 2। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है जो आप मिस ना करें, और उसमें से कौन सा आपको पार्ट करना चाहिए, कौन सा पार्ट करना चाहिए। तो मैंने मेंशन किया है कि प्रॉपर्टीज जो होती है मैट्रिसेस की, है ना, जैसे इनवर्स की प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, है ना। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो जितने भी टाइप हमने पढ़े हैं, वो प्रॉपर्टीज आप थोड़ा सा उनका यूटिलाइजेशन करें। और जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो क्रेमर्स रूल हमने पढ़ा है ना, उस पे बेस्ड डिटरमिनेंट्स में जो आपने पढ़ा है, सिस्टम ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, हर शिफ्ट में अभी रिसेंटली, ओके। आप पेपर भी देखिएगा, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, बहुत इजी, सिंपल नेचर ऑफ रूट्स का, है ना। जब मैंने आपको पढ़ाया भी है तो हमने अलग अलग कंडीशंस पढ़ी है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, होमोजेनियस सिस्टम को कैसे सॉल्व करना है और नॉन होमोजेनियस सिस्टम को कैसे सॉल्व करना है। तो ऑल द थ्योरी यू जस्ट रिवाइज, है ना। और इस पे आपको बेटा क्वेश्चंस, मतलब ये वाला कंसेप्ट आपको मिस नहीं करना। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें,
तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन एक एक्सपेक्टेड होता है कि पूछा जाएगा, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अनदर जो एक मल्टीप्लिकेशन रूल जो आपने पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन रूल इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला, उस पे सवाल बेटा आता है ना। यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे आते हैं, तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू, I mean you should revise these concepts, you should practice these concepts. Okay, complex number पे हम आ जाते हैं। in the recent papers complex number में complex plane की जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, वो अभी मैंने ऑब्जर्व किया कि काफी पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा वो जो पार्ट होता है that you need to actually, स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट आप एटलीस्ट अच्छे से कर लें। कॉम्प्लेक्स प्लेन में स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन है, कैसे उसके फॉर्मूले हैं, कैसे सॉल्व करना है, आप ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा उस पर वर्क कर लें। और अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, nth रूट ऑफ यूनिटी, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट, इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लें क्योंकि इन पे भी क्वेश्चंस आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करेंगे बच्चों, इफ विल टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जरूर से जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना। व्हेनेवर यू विल सी एनी क्वेश्चन पेपर, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो है क्वेश्चन जरूर मिलता है। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स की सीरीज पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो इनवर्स फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज हैं या फॉरवर्ड इनवर्स प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो मेंशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस दैट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आप एक बार देख लें, इनका इन पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, ठीक है, डेफिनेटली आएगा और इजी क्वेश्चन होता है, सिंपल। रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सम ऑफ द रूट्स ये दे रखा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इतना दे रखा है, तो कुछ पर्टिकुलरली वो एक अलग टर्म दे देंगे, वो फाइंड करनी रहेगी, तो उस पे क्वेश्चन आता है। लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आता है, मतलब क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है उस पे बेस्ड या रूट्स की लोकेशन पे बेस्ड। So these are the two concepts which are important. Then sequence and series, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। मीन का सवाल जरूर आता है, एजीपी पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। जैसे अभी एक शिफ्ट में पेपर में एजीपी, डायरेक्ट एजीपी का क्वेश्चन पूछा था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, मतलब एजीपी में तो खैर फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए, आप उसकी अप्रोच यूज कर सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन था, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। समेशन सीरीज का थोड़ा सा आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए, कैसे करना है। और वीएन मेथड, जो कि हम टेलीस्कोपिक मेथड भी बोलते हैं, तो कुछ सीरीज होती है जो टेलीस्कोपिक नेचर की होती है ना, तो कुछ ऐसी भी सीरीज आपको कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। कमिंग फॉरवर्ड टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, रैंक का सवाल यूजुअली पूछा गया है। देखिए मैंने जो टॉपिक यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ नंबर्स, तो नंबर ऑफ नंबर्स का बेसिकली जो सेंस है वो ये है बच्चों कि आप कभी देखना, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे कि द डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स, है ना, या 4 डिजिट नंबर्स जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, विच आर डिविजिबल बाय 5 सो लीव द रिमाइंडर 2, या इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, और उसमें कोई भी वो एक कंडीशन आप डाल देते हैं कि पैलिंड्रोम कैसे बन सकता है, या 2, 3, 4 का यूज करके ही कैसे हो, या इवन हो या ऑड हो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार पूछे जाते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन पे क्वेश्चन आता है बेटा एक, ठीक है ना। सर्कुलर परम्यूटेशन पे कई बार हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डिवीजन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। देयर आर क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। डिवीजन इनटू ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, बाइनोमियल थ्योरम, सो जनरल टर्म एंड द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सीरीज, इन दोनों पे क्वेश्चंस है। अभी इफ यू विल सी द रीसेंट पेपर्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज का हर, मतलब मोस्टली हर शिफ्ट में एक सवाल दिया गया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बेटा कंसेप्ट्स हैं जो आप एक बार रिविजिट कर लें, प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। इसमें से जो मैंने इजी टॉपिक्स बताए थे, बताओ कौन कौन से थे। इफ यू कैन सी द इजी टॉपिक्स वर, देखिए इजी टॉपिक्स में क्या था, mathematical quadratic binomial, right, quadratic and binomial are listed here। तो binomial का जैसे हमने आपको बताया जनरल टर्म, राइट,
and quadratic if you will see, so quadratic के location of roots and relation between the roots and the coefficient. So try to do these concepts. Then we'll proceed to the next topics, functions का. तो functions में बेटा जो particularly जो topics है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो मस्ट डू कंसेप्ट्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, इस पे क्वेश्चन आते हैं. इनफैक्ट कंपोजिट फंक्शन मर्ज होके आता है अदर कंसेप्ट्स के साथ, ठीक है ना. जैसे कंटिन्यूटी के अंदर भी कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी, या डिफरेंशियबिलिटी में वो कंपोजिट फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी, ऐसे आता है मर्ज होके. इनवर्स पे आता है टाइप ऑफ मैपिंग्स. टाइप ऑफ मैपिंग मतलब 1 1 on 2, है ना. और जितने भी हमने सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इनटू है फंक्शन, ऑनटू है फंक्शन, कि 1 1 है फंक्शन, की मैनी 1 है फंक्शन, इस पे क्वेश्चंस जरूर पूछे गए हैं, ठीक है. इनफैक्ट अगर आप रिसेंट ईयर्स, अभी जो रिसेंटली जो पेपर हुए हैं उनमें भी टाइप ऑफ मैपिंग्स के क्वेश्चंस थे, ठीक है, कि फंक्शन का टाइप क्या है, 1 1 है, मैनी 1 है, ऑनटू है कि इनटू है, इस पे क्वेश्चन आता है. फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन आएगा ही बच्चों. आप प्रैक्टिस कर लीजिए फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस को कैसे करना है, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन करके. एंड कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस हैं उसको याद कर लो, है ना. तो ये सब चीजें थोड़ी सी आपको फंक्शंस टॉपिक में कवर करनी है. लिमिट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, लिमिट में एक तो एल ऑपिटल रूल जो है ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हो सकता है लिमिट के टफ अपीयर हो, पर आप एल ऑपिटल रूल से इसको कर पाए. फिर सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं लिमिट के ऊपर, सीरीज एक्सपेंशन के जो सीरीज है, तो आपको बच्चों कुछ सीरीजेस होती है, जैसे लॉगरिथम सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, साइन एक्स की सीरीज, तो ये कुछ सीरीज है, 10x की सीरीज, लॉग ऑफ 1 + x की सीरीज. इन सीरीज का आप ना याद करो, इनको रिवाइज करो, इन पे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, ठीक है. सीरीज के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इनफाइनाइट सीरीज पे भी लिमिट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिसको डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से किया जाता है, हमने कंसेप्ट पढ़ा था, है ना. तो वो वाले क्वेश्चंस भी मर्ज होके आते हैं लिमिट्स में. तो लिमिट हम एक ऐसा कह सकते हैं कि डिफिकल्ट टॉपिक में जा सकता है, क्योंकि कई बार आपको अगर सीरीज क्लिक नहीं हुई या आपको वो चेंज नहीं आया तो हो सकता है इट विल टेक सम टाइम. ऑल्दो एल ऑपिटल रूल का आप यूज करें तो क्वेश्चंस आप इजीली कर भी सकते हैं, ठीक है. एंड देन देयर आर, आई मीन, और भी अलग ट्रिक्स और टेक्निक्स होती है बेटा, हम आगे और डिस्कस करेंगे. किसी डिफिकल्ट टॉपिक को आप विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शंस आप कर सकें, इजी बना सकें. तो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. नाउ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या किस टाइप के कंसेप्ट्स आपको करने हैं. एक तो आपको इसमें जो थ्योरम्स हैं वो अच्छे से कर लेनी है ना. जो भी थ्योरम्स है, रोल्स थ्योरम्स है, लेग्रांजे की थ्योरम होती है, या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, ये आप थोड़ा अच्छे से कर लें. कंटिन्यूटी थ्योरम है कि दो फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो उनका सम कैसा होगा, डिफरेंस कैसा होगा, या प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस, अगर किसी पॉइंट पे दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन क्या कंटिन्यूअस होगा, कैसे जरूरी है कि नहीं है. थोड़ी सी ये जो थ्योरम्स है ना, ये आप पढ़ लें. फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका यूटिलाइजेशन करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना. कोई भी आपको एक फंक्शन दे देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ठीक है, और फिर कंटिन्यूटी के पॉइंट्स पूछ लेंगे या डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पूछ लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे देंगे. सेम डिफरेंशियबिलिटी में भी ऐसा होता है, मॉड्यूलस के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं. तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे इनको अटेम्प्ट करना है ना. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी चाहिए, इंटीजर पॉइंट्स पे करनी चाहिए. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो इंटीजर पॉइंट पे कैसे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी चाहिए. थोड़ा सा इसका आप रिवाइज कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए. अभी देखोगे भी आप कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, तो इन्हीं पे अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए. देन देयर इज अनदर टॉपिक व्हिच इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव. तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव बेटा, इसमें कौन कौन से टॉपिक, देखिए इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं ना. टेंजेंट है, नॉर्मल है, मैक्सिमा है, मैक्सिमा मिनिमा है, मोनोटोनिसिटी है, और भी बहुत सारे अलग अलग इसमें टॉपिक्स हैं. तो आपको यूजुअली जो कंसेप्ट्स हैं जो करने हैं, वो एक तो मोनोटोनिसिटी का, मतलब आपको एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें आपको फंक्शन इंक्रीजिंग
इंटरवल में है, डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है, उस पे एक क्वेश्चन आएगा। तो वो अटेम्प्ट करना आपको आना चाहिए। कैसे एफ डैश एक्स को निकाल के चेक करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मीनिंग है, थोड़ा सा ये चीज आप पढ़ लीजिए। मैक्सिमम मिनिमा पे क्वेश्चन आता है एक, ठीक है। कई बार वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाती है और नहीं तो कंसेप्ट के अंदर भी कई बार मैक्सिमम मिनिमा आ जाता है ना। इनफैक्ट मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस तो आपको जैसे ट्रिग्नोमेट्री का भी कोई क्वेश्चन होगा, उसमें भी आप यूज कर सकते हो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट, ठीक है। या रेंज के कुछ क्वेश्चंस में भी आप कर सकते हो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट। तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट जो है वो आता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही गया है, एक कर्व दे दी है, उस पर कोई टेंजेंट का स्लोप बता दिया है, पॉइंट ढूंढना है, या फिर पॉइंट दे दिया, स्लोप बताना है, या कुछ और ही थर्ड चीज निकालनी है, पर कहीं ना कहीं कर्व, dy by dx, नॉर्मल, इन पे जो क्वेश्चंस हैं जरूर आए ही है। इनफैक्ट मैंने अभी कुछ शिफ्ट्स देखे, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन भी टेंजेंट नॉर्मल के कंसेप्ट्स के मिले हैं मुझे एक ही पेपर में। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल का। और फिर ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का दो कर्व्स के बीच में, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कंसेप्ट पढ़ा होगा, उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। कमिंग टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, just go through these topics. We were talking about indefinite integration, guys. जो क्वेश्चन आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, यूजुअली ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेशन आपको करना है, उसमें अलग अलग फॉर्म्स हमने पढ़े, है ना। cos x प्लस माइनस sin x और sin 2x वाले जो फॉर्मेट्स होते हैं, उसके जो फॉर्म्स थे उसको रिकॉल करो, उस पे कई बार क्वेश्चन आता है। पार्शियल फ्रैक्शन पे कई बार क्वेश्चन आता है, वो टेक्निक यूज होती है। बाय पार्ट्स होता है। और फिर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हो बेटा, देखिए फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, फॉर्म्स याद कर लीजिए, फॉर्म्स एंड फॉर्मूले, है ना। टॉपिक बहुत वास्ट है और क्वेश्चन हो सकता है आपको आता हो पर एग्जाम में आए तो आपको एकदम से क्लिक ना हो कि क्या करना है ना। इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ऐसा हम मान के चलते हैं कि थोड़ा सा उसको लास्ट में ही अटेम्प्ट कीजिए आप, है ना। कई बार आप उस क्वेश्चन में अटक भी सकते हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, है ना। तो वो टाइम को थोड़ा सा आपको मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बिल्कुल आता है बच्चों। एक किंग्स रूल हमने पढ़ा था, है ना, जो कि कुछ लोग उसको हनुमान रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो उस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लिबनिट्ज रूल पे जरूर क्वेश्चन आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में से। वो लिमिट के अंदर भी कई बार यूटिलाइज होके आता है ना। अभी भी जो पेपर्स हुए हैं, प्रीवियस पेपर्स भी हुए, उसमें भी लिबनिट्ज रूल पे क्वेश्चन आए हैं। इनफैक्ट मैंने एक क्वेश्चन ऐसा देखा था अभी जिसमें मॉडिफाइड लिबनिट्ज रूल पे भी सवाल आया हुआ है, मॉडिफाइड लिबनिट्ज रूल पे, जिसमें आपको फंक्शन डिटरमाइन करना होता है। So that question has also asked, पर उसके चांसेस खैर कम है। आप लिबनिट्ज रूल जो बेसिक हमने फर्स्ट रूल है लिबनिट्ज का, है ना, वो आप अच्छे से करें। देन डेफिनेट इंटीग्रेशन में पीरियोडिक फंक्शन पे बेस्ड बेटा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। पीरियोडिक फंक्शन पे बेस्ड जब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े थे जो पीरियोडिक फंक्शंस पे हमने प्रैक्टिस की थी कि ये क्वेश्चंस पीरियोडिक फंक्शंस पे पीरियोडिसिटी का यूज करते हुए, कई बार फंक्शनल इक्वेशन कभी मर्ज करके आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, है ना। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसके बाद एरिया, इट्स एन इजी टॉपिक। लाइन पैराबोला का एरिया आ जाएगा, या पैराबोला सर्कल का आ जाएगा, या पैराबोला पैराबोला का आ जाएगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, है ना, एरिया का। ये कुछ बेसिक है जो आप कर लें, है ना। पैराबोला पैराबोला का क्वेश्चन है तो आपको वो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप से भी करना आना चाहिए, वर्टिकल स्ट्राइप मेथड से भी करना आना चाहिए, है ना। दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। सो यू शुड practice those concepts as well. Then differential equations, so linear differential equation, word problems and degree and order. Word problem differential equation में से they will definitely ask, है ना। ऐसा अभी जो recent papers हुए उसमें भी almost हर पेपर में एक word problem पूछी गई है। हमने न्यूटन्स कूलिंग लॉ जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो उसका वर्ड प्रॉब्लम का एक एप्लीकेशन है। रेडियो एक्टिव डिके पे सवाल आ सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ पे आ सकता है, बैक्टीरिया ग्रोथ पे आ सकता है। सो ऑल दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स जिस पे डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन मतलब आ सकता है। डिग्री एंड ऑर्डर का भी कई बार सवाल आता है, डिग्री एंड ऑर्डर का, ठीक है। तो वो बहुत इजी कैटेगरी में आ जाता है, दैट कम्स इन द इजी कैटेगरी गाइस, ओके। तो दैट यू नीड टू कवर
And what else? Straight line, circle, parabola, ellipse, hyperbola, 3D geometry, vectors, miscellaneous, ये टॉपिक्स हैं, है ना? इनके कौन कौन से बेटा कंसेप्ट्स हैं जो आपको करने हैं? तो स्ट्रेट लाइन में लोकस का सवाल आता है बच्चों, और कुछ फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए। खासकर स्ट्रेट लाइन में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि इमेज ऑफ अ पॉइंट, है ना, कोई पॉइंट है उसकी इमेज का जो कंसेप्ट होता है वो यूटिलाइज, उस पे क्वेश्चन आया गया है ना, इमेज ऑफ अ पॉइंट, तो वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। लाइन के अंदर आपको बेसिकली फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए कि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन से कैसे निकालते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म का यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए। तो ये सब सारी सी चीजें हैं जो स्ट्रेट लाइन में यू शुड कवर। सर्कल्स, डेफिनेटली क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, और सर्कल का जो क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पे ही क्वेश्चन आएगा बच्चों। सर्कल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन डायग्राम बनाने से बहुत इंपॉर्टेंटली आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, और डायग्राम बनाओगे चीजें, कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक एडवांटेज ये होता है कि दे आर ओनली लिमिटेड कंसेप्ट्स। अगर आप यू नो इफ यू आर ड्राइंग अ प्रॉपर थोड़ा सा सेमी रफ फिगर भी बनाते हैं, तो यू कैन सी द ऑप्शंस and you can analyze ki, okay, so the line is going through this particular quadrant, so the point will be of third quadrant only, so you can see the options and you can identify, okay, this is the only point which is in the third quadrant, so answer will be this. तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्कोरिंग टॉपिक्स में आ जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूरा ना आते हुए भी बच्चों, you can make a rough figure, identify, okay, this is what the figure is going to look, and there will be the line which will going to pass through this thing, and the circle has the radius, तो उसका साइज ऐसा होगा, तो यहाँ से टेंजेंट गुजर रही होगी, इसको कट कर रही होगी। तो these are certain techniques that you can always apply। तो लोकस का भी सवाल आता है सर्कल पे, और सिंपल इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने पे सवाल आता है। इजी आता है सर्कल का सवाल, ओके, फिगर बस बनाना होता है आपको प्रॉपरली। देन कम्स पैराबोला। देखिए पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, अगर हम इनकी कलेक्टिवली बात करें बच्चों, इफ यू टॉक कलेक्टिवली, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि पैराबोला पे टेंजेंट नॉर्मल, इलिप्स पे टेंजेंट नॉर्मल, हाइपरबोला पे टेंजेंट नॉर्मल, इस पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालना है। कई बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ लेते हैं, कई बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ लेते हैं, कई बार आपसे एंगल बिटवीन द टेंजेंट पूछ लिया जाता है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में। तो ये सब कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कैसे इन पे सवाल करना है बच्चों, ओके। पैराबोला में कॉमन टेंजेंट का भी सवाल कई बार पूछा गया है, जैसे हाइपरबोला में यूजुअली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री का जो अगर हम टॉपिक्स की बात करें, तो अच्छा वेटेज होता है, इसका भी सवाल आता ही है बच्चों, और इजी क्वेश्चन होता है। 3D ज्योमेट्री में यूजुअली लाइन और प्लेन के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस इजी होते हैं, दिखते हो सकता है आपको टफ लगे, क्योंकि जो प्लेन की इक्वेशन है या लाइन की इक्वेशन है, कई बार वो सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं दी होती है, या सिमेट्रिकल फॉर्म भी हम कई बार नहीं समझ पाते हैं, या फिर जो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का कंसेप्ट है, उसको हम कई बार अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए लगते टफ है पर होते इजी है। लाइन का जो क्वेश्चन है आता है, और इमेज के कंसेप्ट के साथ कई बार मर्ज होके आता है, मतलब कभी वो आपको इमेज ऑफ अ पॉइंट बोल देंगे अबाउट अ लाइन, या फिर लाइन की इमेज किसी प्लेन के अलोंग, प्लेन के अबाउट आपको निकालने का बोल देंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सिंपल प्लेन के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से कोई तीसरा प्लेन पास हो रहा है, तो वो कैसे आप उसकी इक्वेशन निकालोगे, या एक प्लेन दो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो कैसे उसकी इक्वेशन निकालेंगे। सो दीज काइंड ऑफ कंसेप्ट्स, डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट्स है ना, इन पे ही यूजुअली सवाल जो है आता है। तो ये कंसेप्ट्स बेटा आपको करने, बिलीव 3D ज्योमेट्री स्कोरिंग टॉपिक होता है, ये भी मुझे इनफैक्ट इजी में ही कैटेगराइज करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, बट इजी में ही आता है बेटा ये, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे प्लेन के, लाइन के। वेक्टर्स पे आ जाते हैं, ओके। सो वेक्टर्स गाइस, वेक्टर्स के अंदर एक तो आपको डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट पे भी आता है, डॉट प्रोडक्ट पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। मैंने सारे कंसेप्ट्स मर्ज नहीं किए यहाँ पे, सिर्फ ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स के जो एटलीस्ट आपको ये तो कर ही लेने हैं, यू नो, इससे आपके जो चांसेस हैं थोड़े से अच्छे बेटर हो जाएंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट,
इस पे भी सवाल आता है बॉक्स प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो डू दीज टॉपिक्स एंड देन देयर आर मिसलेनियस टॉपिक्स व्हिच इज लॉजिक एंड स्टैटिस्टिक्स। लॉजिक का क्वेश्चन बेटा ट्रुथ टेबल, कॉन्ट्रापोजिटिव, टॉटोलॉजी। अगर आप सिर्फ ट्रुथ टेबल भी कर लेंगे तो आपको टॉटोलॉजी क्या होती है उस पे क्वेश्चन आता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन आता है, और एक जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स, कन्वर्स। तो बहुत स्कोरिंग हो जाता है, एक क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट एक शिफ्ट में लॉजिक के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इफ यू आर लकी, अगर आप लकी हो तो हो सकता है आपको अगर 2 क्वेश्चंस पूछ लें लॉजिक से तो आपके 8 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की अगर बच्चों हम बात करें, फिर टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स, तो वेरिएंस पे यूजुअली क्वेश्चन आता है, वेरिएंस पे, कई बार मीन पे भी आता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि यू नो इनकरेक्ट मीन या इनकरेक्ट वेरिएंस, तो फिर करेक्ट मीन करेक्ट वेरिएंस निकालना होता है आपको कई बार, तो ऐसा क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पे आता है। तो ओवरऑल बेटा ये कुछ मैंने कंसेप्ट्स यहाँ पे यू नो हाईलाइट किए जो आप लोग कर रहे हैं, तो दैट विल बी very beneficial for you all. So try to do these concepts, okay? And you know this is all about basically सिलेक्शन आपको कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है ना। तो जैसे आप ये कंसेप्ट्स कर लोगे तो इसमें से आप इजी वाले जो है टॉपिक्स से वो वाले कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं, है ना। सिलेक्शन आपको इजी हो जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करें। अब जो थर्ड पार्ट है बेटा आपकी स्ट्रेटेजी का, टाइम मैनेजमेंट डन हो गया कि क्या सीक्वेंस फॉलो करनी है, क्वेश्चंस को कैसे सिलेक्ट करना है, कौन से कंसेप्ट्स का क्वेश्चन आ सकता है तो करना इजी रहेगा। देन कम्स कि एक्यूरेसी और स्पीड। देखिए ये दोनों आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। एक्यूरेसी एंड स्पीड कैसे आप इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, उसको बैलेंस कर सकते हो, उसके लिए पहले आपको एक चीज समझनी होगी बच्चों कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन जब सॉल्व होता है ना तो उसका एक फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है कि व्हेनेवर यू सी द क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ओके क्वेश्चन में ये पूछा है ना। कई बार बेटा ऐसा होता है कि यू रीड द क्वेश्चन बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि यार पूछा क्या है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है सवाल क्या है, या ऐसा तो हमने कोई कंसेप्ट ही नहीं समझा या समझा। तो पहले तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को हम जब पढ़ते हैं तो हम पहले तो उसमें जो उसका जो सॉल्विंग का फ्लो होता है, तो उसमें जो पहला पार्ट होता है वो होता है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन समझते हो फिर आप रिकॉल करते हो कि इसमें ये वाला कंसेप्ट लगेगा, तो वो कंसेप्ट का फिर एप्लीकेशन वाला स्टेज होता है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आता है, फिर आपको कंसेप्ट क्लिक होता है कि हाँ ऐसे कंसेप्ट है इसमें लगेगा, वो सेकंड पार्ट ऑफ प्रोसेस उसके सॉल्विंग का होता है। और फिर जो सबसे लास्ट पार्ट होता है कि हाँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको कंसेप्ट, अब आपको कैलकुलेट करना है, आंसर तक पहुंचना है। तो ये तीसरा पार्ट होता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इन 3 स्टेजेस में टाइम लगता है। जो पहले 2 स्टेजेस हैं, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पढ़ के समझ में आने में बेटा हार्डली 5 सेकेंड्स यू विल टेक। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये तो ट्रिगो इक्वेशन का क्वेश्चन लग रहा है, या फिर ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लग रहा है, या फिर ये क्वेश्चन लिमिट का है, ऐसा है, तो इट विल ओनली टेक 5 मिनट्स। फिर ये क्वेश्चन समझ में आने के बाद इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, मैक्सिमम 10 सेकेंड इट विल टेक टू आइडेंटिफाई कि ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, इसमें सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, ये ऐसा दिख रहा है सवाल, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन अपीयर्स। पीएनसी का अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो डिवीजन ऑफ, ये तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिवीजन है, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। तो कंसेप्ट आपको क्लिक होएगा, इसकी भी जो साइकिल है मैक्सिमम 10 सेकेंड्स की है। दोनों जो फर्स्ट स्टेजेस हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की, एट मैक्स 20 सेकेंड इट विल टेक, एंड 20 सेकेंड्स के बाद देयर I mean, first of all, let me tell you, there are 25 questions और 1 hour है, या लगभग अगर आप टोटल मतलब ऑलमोस्ट 2 मिनट या 2.5 मिनट्स आपको एक क्वेश्चन का मिलता है, ठीक है। तो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 मिनट्स के अराउंड हम लेके चलते हैं कि सपोज 25 क्वेश्चंस है, तो 20 सेकेंड्स में आपकी पहली 2 स्टेजेस कवर हो जाती हैं, तो बाकी बचा हुआ जो टाइम है 1 मिनट
राइट, 1 मिनट 40 सेकंड, मतलब 1 मिनट 40 सेकंड्स, लगभग 1.5 मिनट बहुत होता है बेटा कैलकुलेशन करने के लिए। और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप कैलकुलेशन को स्मार्टली करना सीख चुके हो टिल नाउ। जब भी हम क्वेश्चंस को कैलकुलेट करें तो हमारा पूरा फोकस उन वैल्यूज पे होना चाहिए, और हमें कई बार कुछ स्टेप्स को स्मार्टली टैकल करना होता है। जैसे छोटे छोटे टिप्स होते हैं कि मुझे अगर किसी को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे इक्वेशन में इंटू 5 दिख रहा है, बड़ा नंबर इंटू 5 दिख रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं। अगर आपको किसी नंबर को 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप उसको 20 से मल्टीप्लाई करके 1 मतलब 20 माइनस 1 लिख के ऐसा सॉल्व कर लीजिए। तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिससे आप कैलकुलेशन को फास्ट बना सकते हो, राइट। तो 1.5 मिनट बहुत होता है बेटा सवाल को कैलकुलेट करने के लिए। इनफैक्ट आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप इस 1.5 मिनट का जो कैलकुलेशन का टाइम है, वहां से आप टाइम को जो है बचाएं, सेव करें, ताकि आप उनको डिफिकल्ट क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकें। तो ये एक आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि बेटा जो पहली 2 साइकिल, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन ऑफ अ कंसेप्ट, ये मैक्सिमम 20 सेकंड्स में आपका काम बेटा हो जाएगा, राइट। तो कोशिश कीजिए कि जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, तो वो आपका कैसे क्लियर होगा। आपको स्पीड पे भी ध्यान रखना है और एक्यूरेसी आपकी अपने आप मेंटेन होगी, दोनों का बैलेंस लेके चलना है। और कुछ बेटा जनरल टिप्स हैं जो आप ध्यान रखें, जैसे क्वेश्चन को एक तो केयरफुली पढ़े, उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है, मस्ट रीड ऑप्शंस। बिलीव मी, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो ये गलत प्रोसेस होती है। जब भी आप सवाल पढ़े बच्चों, whenever you read the question, always read the options, always see the options, because options will also tell you in what directions you need to solve. लाइक सपोज हम मैथ्स की तो बात कर ही लेते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, आपने देखा कि जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अंदर पर्टिकुलरली लेट अस से कोई यूनिट जो है वो मान लीजिए एमएम में यूनिट दे रखी है, और आपको जो डेटा दे रखा था वो सेंटीमीटर्स में दे रखा था, तो क्या हमारे लिए एडवांटेजेस नहीं होगा कि हम पहले से ही सारी चीजें एमएम में सॉल्व कर लें, है ना। कई बार फायदा हो जाता है उसमें। तो ये तो मैं फिजिक्स का आपको जैसे बताया। मैथ्स के अंदर भी बेटा कई बार ऐसा होता है कि हम ऑप्शंस को देख के हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस डायरेक्शन में चीजें सॉल्व करें तो दैट विल बी मच बेनिफिशियल। तो क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, ऑप्शंस जरूर पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑप्शंस भी पढ़ें, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई भी सवाल मत करना जब आप विदाउट ऑप्शंस उसको सॉल्व कर रहे हो। तो रीड द ऑप्शंस, okay, it will actually help you in which direction you need to bring your answer, किस फॉर्म में आंसर। कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको बताया है कैसे कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कैलकुलेशन का। एलसीएम कैसे फास्टली ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड है, या जैसे एडजॉइंट का सवाल है तो एडजॉइंट का हमने शॉर्टकट सीखा था, है ना, या कोफैक्टर्स को कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये जैसे जहां आपको कैलकुलेशन का जो टेक्निक है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चीजों को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, एडिशन जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही बैलेंस होती रहे। आपके जो वीक एरियाज हैं उस पे फोकस करो थोड़ा सा। कई बार कुछ बच्चों को होता है कि हमसे यू नो समझ में तो आ जाता है, ऐसा कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम एक्चुअली सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। वहां पे मैं वीक हूँ, तो वो थोड़ा एरिया आइडेंटिफाई कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। एक तो गेस वर्क आपको नहीं करना है, उससे एक्यूरेसी का ब्लंडर हो जाता है बेटा, ठीक है। गेस वर्क बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें, किसी भी हालत में हमें गैस नहीं करना है, ठीक है। हाँ, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें आप कर सकते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने सफिशिएंट अमाउंट का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है और अब जी ये जो क्वेश्चन है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें आप गैस वर्क कर सकते हो, पर वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए बेटा, हमारा द लास्ट रिजॉर्ट, ओके। आगे इसमें कुछ और चीजें लिखी है कि डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें आप स्टक कर जाएं, है ना। कई बार होता है हम सवाल को सॉल्व करते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं, तो फिर आप ऐसे टाइम पे क्या करो, उस सवाल को वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। हाँ,
इसमें कई कई बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है, उनका थोड़ा सा ईगो वाला प्रॉब्लम आ जाता है। ये होता है, ये फैक्ट है, ये मेरे साथ भी होता है कई बार। जैसे हम भी जब सॉल्व करते हैं या आपके डाउट्स लेते हैं, कई बार हम किसी कैलकुलेशन में अटक जाते हैं, फिर हम उसमें, जैसे सपोज वो मेरा फेवरेट टॉपिक था, है ना? या आपको लगता है कि यार इंटीग्रेशन तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, पर आपने जैसे इंटीग्रेशन का सवाल किया, आप उसमें अटक गए। अब आपको बेटा इस चीज़ों को ईगो पे नहीं लेना है ना? इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, भले ही आपका फेवरेट टॉपिक था, आपने बहुत प्रिपरेशन करी थी और आप बिल्कुल उस टॉपिक को, उस टाइम पे, उस क्वेश्चन को लीव करें और नेक्स्ट पे जंप करें। अपने ईगो को असाइड रखें, टॉपिक का जो ईगो है ना? कई बार होता है हमारा ऐसा, जैसे पीएनसी है या कोई भी टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक पीएनसी है, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि पीएनसी का सवाल तो मैं करूँगा ही करूँगा। पर ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में जो पीएनसी का क्वेश्चन आया, मेरे से कुछ कंसेप्ट में टाइम ज्यादा लग गया, तो आई विल ड्रॉप माय ईगो एट दैट पॉइंट। तो वो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है? सिली मिस्टेक्स को आप अवॉइड करें, है ना? सिली मिस्टेक्स कई बार ये हो जाती है कि हम डेटा ही गलत उतार लेते हैं, ठीक है? हम आंसर कुछ लेके आते हैं, पर ऑप्शंस जल्दबाजी में गलत मार्क कर देते हैं, फॉर्मूला हम गलत अप्लाई कर देते हैं। तो ये सब सिली मिस्टेक्स हैं, इनको आप थोड़ा सा अवॉइड करें, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, आइडेंटिफाई करो आप क्या क्या सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है? अब तो आंसर की भी आ चुकी है फर्स्ट अटेम्प्ट, आप एनालाइज कीजिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां करी, कहाँ कहाँ आपने किस किस एरिया में आप इम्प्रूव कर सकते हो, आइडेंटिफाई दैट। ओके, सो इन सब चीजों पे बेटा थोड़ा सा काम कीजिए। जनरल टिप्स यही है कि यू नो एक माइंडसेट आप प्रिपेयर करो कि आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, तो एक काम एंड कंपोज्ड वे से, है ना? आप अपना माइंडसेट क्रिएट करते हुए कि ओके दिस इज द एग्जाम, यू नीड टू बी, मतलब थोड़ा सा उसको काम एंड कंपोज्ड वे में माइंडसेट बनाते हुए कि एग्जाम का जो भी आपका माइंडसेट, जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल लगता है, एक थोड़ा सा वैसा क्रिएट करते हुए एग्जाम में अपीयर करें। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, है ना? प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको जरूर रिवाइज मतलब प्रैक्टिस करने होते हैं। कुछ टिप्स जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड भी कई बार आप यूज कर सकते हो। मैंने कहा था कि ऑप्शंस जरूर पढ़ें। कई बार किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आप ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? तो एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन भी एक मेथड होती है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ सवाल में, लेकिन अब हर सवाल में ऐसा करना है ये भी सही नहीं है बेटा। ओके, इन सम क्वेश्चंस यू कैन अप्लाई दिस मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और खासकर यू नो हम कब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज, suppose if you are sure ki in the 2.5 hour you have attempted easy and the moderate question in a good quantity, now you think ki, only 20 to 25 questions are left, all difficult questions of each subject, so now suppose मैथ्स में आपके 6-7 क्वेश्चंस रह गए जो आपको लग रहा है कि यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, सो व्हाट यू कैन डू कि इन 6-7 क्वेश्चंस में से ना कुछ क्वेश्चंस आप आइडेंटिफाई करो जो कि आपको लग रहा है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके किए जा सकते हैं, तो वहां पे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो, है ना? तो ऐसे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो चीजों को। हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के टाइम पे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, ठीक है? अभी बेटा प्रिकॉशंस आपको लेना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि कोरोना सिचुएशन यू ऑल आर अवेयर ऑफ, ओके? सो अच्छा खाओ, ठीक है? साउंड स्लीप लो, और खासकर एग्जाम के एक दिन पहले तो बहुत अच्छे से लो, ठीक है? पूरा आपके जो भी मतलब डाइट है प्रॉपर होना चाहिए, स्लीप प्रॉपर होना चाहिए, और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखो, मतलब पब्लिक प्लेस में अवॉइड ही करो अभी जाना, ठीक है? एटलीस्ट जब तक आपके सारे एग्जाम्स नहीं हो जाते, ठीक है? कैजुअली मत लीजिए कोरोना की सिचुएशन को, ओके? इसको अच्छे से थोड़ा सा हैंडल कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, और हर चीज का ध्यान रखिए, मतलब अवॉइड पब्लिक इंटरेक्शंस, पब्लिक प्लेसेस पे मत जाइए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। अदरवाइज ऑल्दो उन्होंने 4 हमें अटेम्प्ट दिए जेई में, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल, है ना? कोरोना सिचुएशन आप सभी जानते हैं कि इट एक्चुअली वेस्ट योर 15 to 20 days, तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है ना?
आप विटामिन का इंटेक प्रॉपरली लीजिए, ठीक है। डाइट का जो आपका प्लानिंग होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए, और नींद प्रॉपरली। ओके, सो गाइस, what are the other things you should understand? ठीक है, देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड, थोड़ा सा फुल स्क्रीन मोड आई विल ब्रिंग अगेन। ओके, चलिए इसमें आने लगे। ओके, मार्च अटेम्प्ट के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? एक चीज बेटा आप सभी बच्चे ध्यान रखें कि यू नो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दैट योर ओनली पर्पस फॉर द कमिंग मंथ्स इज जस्ट टू स्टडी। हाँ, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो आपको एक तो सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो 15 आवर्स का जो है सिटिंग डेवलप करना है, ठीक है, बिल्कुल। बिकॉज इसके अलावा और कोई अभी आपके पास यू नो देयर शुड नॉट बी एनी अदर वर्क यू शुड इन्वेस्ट टाइम इन, ठीक है। सेल्फ स्टडी एंड स्लीप। खाना खाने के लिए तो खैर मना किसी ने नहीं किया है, राइट। सो 15 आवर्स का आप कोशिश कीजिए कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं वो कम से कम 2-3 बार आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। डू नॉट स्टडी एनी न्यू टॉपिक, नए टॉपिक्स कोई भी आप जो है अभी स्टडी ना करें। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। डेली आप पेपर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा। इनफैक्ट आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि जितना आप टेस्ट दोगे उतना आपका टेस्ट टेम्परामेंट डेवलप होगा। और बिल्कुल आप ऐसे ही टेस्ट दीजिए जैसा कि बिल्कुल मान के चलिए कि यू आर इन द टेस्ट सेंटर, है ना, उसी एनवायरनमेंट में, उसी टाइम स्लॉट में। मॉर्निंग शिफ्ट का अगर आपका पेपर है तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट की। अगर आपका इवनिंग शिफ्ट में है तो आप वो इवनिंग मतलब आफ्टरनून शिफ्ट में है तो आप उस शिफ्ट का टाइम लेके उसी टाइम में 2 से 5 में या यू नो पेपर दीजिए। डेली कीजिए, डेली। अभी 5 डेज है ना, तो डेली यू हैव टू डू दिस। तो क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, है ना, अपनी बॉडी को ना उस अपने माइंड को उस क्लॉक में एडजस्ट कीजिए। ओके, सो एंड जितने भी टेस्ट आप देते हैं तो उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप लोगों को कई बार हमने एनालाइज कैसे करना है टेस्ट, वो सारे पॉइंट्स बता रखे हैं, है ना। देखिए आप कहाँ पे रॉन्ग कर रहे हैं, क्वेश्चंस कंसेप्ट नहीं आ रहा है इसलिए रॉन्ग कर रहे हैं, किसी भी मिस्टेक के कारण रॉन्ग कर रहे हैं, या फिर आप गेस वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, है ना। एक्यूरेसी को कैसे कंट्रोल करना है, तो ये सब चीजें एनालाइज जरूर कीजिए अपने टेस्ट को। एंड वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, okay, whenever you start solving, so always you know, time bound yourself. Try to you know, observe ki in 1 hour how many questions you are able to solve, in 2 hours how many questions you are able to solve. So always try to, you know, do the time bound calculations, time, hai na, solve karte time, start time, end time, and how many questions you have attempted. Try to do time bound question solving. And आपका जो एक एवरेज निकल के आना चाहिए, मतलब एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि आप 1 आवर में 30 क्वेश्चन इजीली कर पाए, है ना। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, इनफैक्ट आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए 40 क्वेश्चन कर पाए 1 आवर में। हालांकि दैट इज एन एक्सट्रीम एंड, बट ठीक है, 30 क्वेश्चन हमारी होनी चाहिए कोशिश, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि डेली, यू नो, इन डेली, जैसे आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के भी आप अगर यू नो 2 घंटे भी बैठते हैं अगर पढ़ने, 15 आवर्स की स्लीप में 15 आवर्स की सेल्फ स्टडी में अगर 2 आवर्स भी आप पढ़ रहे हैं, तो 1 आवर्स में अगर आप 30 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो 60 मतलब 180 क्वेश्चन, लगभग 200 क्वेश्चंस आप डेली अगर सॉल्व करते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स। सो डू दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ओके। तो ये सारे आपके मार्च अटेम्प्ट के यू नो मार्च अटेम्प्ट के आपके यू नो सारा प्लानिंग हो जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा। सेल्फ स्टडी टाइम, रिवाइज शॉर्ट नोट्स, नए टॉपिक्स मत पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट को एनालाइज कीजिए और टाइम बाउंड सॉल्विंग कीजिए, ओके। देन अप्रैल एंड मई अटेम्प्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये तो चलिए मार्च अटेम्प्ट की बात थी। अप्रैल एंड मई अटेम्प्ट के लिए बेटा क्या करना, आप लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है उनको चैप्टर वाइज आप सॉल्व करते चले। तो एक एक चैप्टर आप पिक करें और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस चैप्टर से पूछे हैं उसको साथ में सॉल्व करते चले। तो ये एक बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी हो सकती है। और आई थिंक अप्रैल अटेम्प्ट में आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा उसको भी मैनेज करना पड़ेगा।
तो दोनों को मैनेज भी करके चलिए कि बोर्ड के एग्जाम्स को कैसे मैनेज करना है। अप्रैल अटेम्प्ट में आई नो कि काफी लोग मतलब आपके बोर्ड के पेपर्स चलेंगे, तो आप ठीक है थोड़ा सा वहां फोकस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्रैल में थोड़ा सा भी जेई ना करें, एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लें, ठीक है। एंड फिर मई अटेम्प्ट में यू कैन डू ऑल फोकस्ड वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल बेटा ये सारी चीजें हैं, है ना। शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना, टेस्ट देना, जितने टेस्ट दोगे उतना बेटर होगा, है ना। टेस्ट फाइनलाइज कीजिए। So this is the plan for your April and the May attempt. Okay. Now there is this quote which I have mentioned here. एक तरह से ये I particularly believe in this quote. ठीक है, मैं इस quote में काफी believe करता हूँ, and this is my mantra as well. So I'll just read this thing out for you. Do whatever you have to do with a true and the earnest zeal. Bend your sinews to the task and do it with an honest way. बहुत ही अच्छा कोट लगता है मुझे, और मैं इस पे भी काफी बिलीव करता हूँ कि आप जो भी काम करें, आप पूरी मेहनत और लगन से उसको करें, पूरी ऑनेस्टी के साथ करें। एंड बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, आपकी जो भी मेहनत है ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। हो सकता है उसका जो आपको आउटपुट है वो इमीडिएट ना मिले, वो आफ्टर कुछ टाइम मिले, बट आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। तो ऑनेस्टली आप लोग प्रिपरेशन करो बच्चों, ठीक है। और ऐसा मत सोचिए कि जेई ही एक एग्जाम है। आई नो कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बट ये ओनली एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि प्रेशराइज ज्यादा आपको नहीं होना है, स्ट्रेस मत लो एग्जाम का बहुत ज्यादा। एग्जाम का फियर के कारण, प्रेशर के कारण कभी भी आप कुछ ऐसा ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। बेसिकली एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपनी मेहनत में कमी मत छोड़िए, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करेंगे, इफ मी, that will be worth it. Okay, so things are not easy, but believe me, if you are working honestly, it will be worth it always. Okay, so I just need to say all the best for your upcoming attempt. Okay, and just do your honest hard work. Okay, believe in yourself, do not take pressure. Okay, and if you feel any kind of stress, always talk to your relatives or to your teachers and seek guidance, but do not isolate yourself, try to lighten up your stress. तो थोड़ा सा उसको चैनलाइज कर लेना। कभी भी ऐसा लगे स्ट्रेसफुल लगता है तो ऑलवेज बात करो, है ना। अपने मम्मी पापा से बात कर लो, अपने फ्रेंड से बात कर लो, टीचर से बात कर लो। एंड yeah, so this is all for your upcoming JEE attempts. And if you have any questions, you can always reply in the comment box, and you can always ask. You can reach to us, okay, and you can put your queries. And thank you once again, guys. Okay, all the best for you in the upcoming attempts. See you.